Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। It's again a good time to be in the fellowship of God. प्रभु की सहभागिता में आने का एक अच्छा समय साझा है। And again sharing the word of God is a privilege. और परमेश्वर ने अच्छा समय दिया कि हम परमेश्वर का शब्द साझा कर सकते हैं। Though we didn't have much testimonies today, हालांकि आज बहुत सारी साक्षियां नहीं थी, but last Sunday we had a very good experience of testimonies and how one testimony stimulated the other testimonies and there was change in his life. और पिछले सप्ताह बहुत सारी साक्षियां थी और वो साक्षियां जो है वो एक साक्ष्य जो है दूसरे साक्षी से जुड़ी होती थी, तो लगातार एक अच्छा समय हम प्राप्त कर सके। So praise God. प्रभु की स्तुति। He is doing marvelous things in our church. वो हमारे कलीसिया में अच्छे अद्भुत कार्य कर रहे हैं। Though we might be in less in quantity, हो सकता है हम नंबर संख्या में कम हो, but the quality wise we are increasing. लेकिन गुणवत्ता के अनुसार हम ज्यादा है बढ़ रहे हैं। And moreover our youths are being growing in the presence of the Lord. और हमारे युवक जो है प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जा रहे हैं। There are many changes in our youths. Like I've been interacting with them. और हमारे युवकों के अंदर जो है बहुत सारे बदलाव नजर आ रहे हैं जैसे हम उनके साथ मिलते हैं। 1.5 years back and now they are totally changed. They are reformed. They are growing in Word of God. और 1.5 साल पहले जो थे उससे वो काफी बदले हुए प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, और वो परमेश्वर के मार्ग में और हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। So please pray for the youths. तो दया करके युवकों के लिए प्रार्थना कीजिए। As God has chosen them. कि परमेश्वर ने उन्हें चुना। They have not chosen God. उन्होंने परमेश्वर को नहीं चुना। But God has chosen them. परमेश्वर ने उन्हें चुना। And God is doing marvelous things in their life. और परमेश्वर अद्भुत कार्य उनके जीवन में कर रहा है। And we hope down the line more and more youths will join them. हम सोचते हैं कि आने वाले समय में वो और युवक उनके साथ आए। Before we go ahead, I have a small picture to be shown. और हम उसमें आगे जाने से पहले हम एक चित्र को साझा करना चाहते हैं। Okay. Everyone have their mobiles with them. हम देखें हाँ हर एक And most of them are in the group Restoration Revival group. और रेस्टोरेशन रिवाइवल ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। So can you just open that? I've shared it in that group. और वो ऐप जो है हमारे ग्रुप का वो खोल सकते हैं, तो उसमें वो दिया हुआ है। Got it? Can you just open that? What can you see? ये जो है दिया हुआ, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ Okay. शेर और खरगोश का पिक्चर देख सकते हैं। Okay. So there is a lion who is यहाँ पर एक सिंह है who has been praying. जो प्रार्थना कर रहा है। Thank you Lord for blessing me with much needed food and answering my prayers. वो ये धन्यवाद कर रहा है कि परमेश्वर ये मुझे अच्छा आपने भोजन दिया और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। On the same time, उसी समय you see a rabbit और वहाँ पर नीचे एक जो खरगोश है who is also praying. और वो भी धन्यवाद कर रहा है। No, but then he's saying, deliver me from this situation. वो कह रहा है कि मुझे परिस्थिति से बचा। Now my question is, have you seen it? Yeah. Now my question is, whose prayer God is going to answer? अब हमें आपने अगर देखा होगा तो हमारी प्रार्थना ये कुछ सवाल है कि किसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा।
And he answers, whose prayer is God is going to answer, the lion one or the rabbit's one? आप क्या जवाब दे सकते हैं कि किसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनने वाला है? Why? Because lion is also, he is made lion, na? And lion is hungry. He made lion to eat food only animals. He didn't made him to eat leaves and or whatever. क्योंकि सिंह जो है उसको भी परमेश्वर ने बनाया है और उसको भी अपने भोजन की आवश्यकता है। And also he's praising God rather. और वो जो है परमेश्वर का धन्यवाद भी कर रहा है। He's praising God for answering his prayers. वो धन्यवाद कर रहा है उसके प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। Now it's very clear. Now whose prayer God will answer? उस किसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? Lion is also God made. He's been hungry for so many days, and he's been blessed by food. और सिंह को भी परमेश्वर ने बनाया है और वो काफी दिनों से भूखा है। And the rabbit is like he's in a situation now. और Whose prayer God will answer now? खरगोश जो है तो वो विकट परिस्थिति में। Or rather, I will put it the other way. On whose side God will be? और हम दूसरे शब्दों में कहें कि परमेश्वर किसके पक्ष में रहेगा? Sorry. But either one, if God answers his prayer, he will be hungry. If God answers his prayer, he will be dying. अगर सिंह के वो नजरिए से देखते हैं तो प्रार्थना अगर परमेश्वर सुनता है तो उसकी भूख मिटेगी, लेकिन इसकी ओर से देखते हैं तो ये मरने वाला है। Whose side God will be? तो परमेश्वर किसके पक्ष में रहेगा? How can it be? Then lion will die. He is hungry. He will be dying then. अगर सिंह को खाना नहीं मिलेगा तो वो मरेगा क्योंकि वो भूखा है। The other side of my question is like whose side God will be? हमारे प्रश्न का दूसरी जो साइड है वो कि परमेश्वर किसके पक्ष में रहेगा? Many times, children of God, we are trapped in this situation. When there are, sorry. बच्चों ये कई बार जो है हम ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए रहते हैं। And especially when there are two parties, believer parties, in church, in family, usually we find, sorry. और चर्च में अक्सर हम देखते हैं कि दो लोग हैं, अक्सर हम इस बात को देखते हैं। If there are fights in husband and wife, husband prayers, wife prayers, and both are thinking that God is on my side. पति पत्नी है, दोनों ही प्रार्थना करते हैं कि दोनों सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे पक्ष में है। In church group also if there are friction in church, there are A group and B group. Both are thinking God is on my side. और अगर चर्च में दो ग्रुप है तो दोनों सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है। And at times we quote Bible verses also. कई बार हम वचन भी वहाँ पर जो है साझा करते हैं। Like in this case, if Lion would have quoted the verse Psalms 128:2, यहाँ पर जो है सिंह अगर ये भजन संहिता 128 अगर के अनुसार करता है, that you will enjoy the fruit of your labor and अपने मेहनत का फल का आनंद लुत्फ उठाओगे, and you will be joyful and you are prosperous. आप आनंदित रहोगे और आप भरपूरी से भरोगे। And on the other side, the rabbit will quote Psalms 34:8. और जो खरगोश है वो भजन संहिता 34 में बताएगा। Taste and see the Lord is good. Oh joy and how to be in His refuge. कि प्रभु का स्वाद लो और वो कितना अच्छा है उसकी शरण में। And then we expect God to answer our prayers. और फिर जो है हम परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने से हम अपेक्षा करते हैं। Both the parties think themselves to be righteous. और दोनों जो सोचते हैं कि हम नीतिमान हैं। Both of them, husband and wife, mother, father, whatever, two parties, they themselves think we are righteous. God has to answer my prayer according to what I have prayed. और दोनों जो है हो सकता है माता पिता हो, वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें जवाब मिले क्योंकि जैसे मैंने प्रार्थना की। And in return, you are condemning the other person. और उसके जवाब में आप दूसरे को जो है खारिज कर रहे हैं। You are saying that the other person is wrong. आप
कह रहे हैं कि वो दूसरा व्यक्ति गलत है and I am correct. और मैं सही हूँ। God is in my side. परमेश्वर मेरे पक्ष में है। God has to answer my prayer. परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का जवाब देना ही है Prayers with faith. और वो प्रार्थना विश्वास के साथ की गई Those prayers will go with faith, with fasting. और वो प्रार्थना है जो उपवास के साथ विश्वास के साथ की गई And we expect God to answer our prayers. और हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जवाब देना चाहिए। Now in this situation, can you just explain me whose prayer God will answer then? और ऐसी परिस्थिति में क्या हम सोचते हैं कि किसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और जवाब देगा? Who on whose side God in God's side who will be the righteous person? और परमेश्वर के नजरिए से कौन नीतिमान व्यक्ति होगा? Children of God, it's a very tough question. परमेश्वर के बच्चों ये बहुत जटिल ऐसे सवाल है And even at times we keep God into temptation. और कई बार जो है हम परमेश्वर को भी जो है वो टेम्पटेशन में लाते हैं। We have a same situation in Bible. और यहोवा शास्त्र में यही परिस्थिति है। Let's turn our Bible to Joshua 5th chapter, यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय की ओर जाएंगे। 13 to 15. 13 से 15 पद पढ़ेंगे। Joshua 5, यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय 13 to 15. 13 से 15 वचन। Can someone read? यहोशुआ 5वा अध्याय 13व्या वचनापासून तर 15व्या वचनापर्यंत। यहोशुआने यरीहोजवळ असताना समोर पाहिले तो कोणी पुरुष आपल्या हाती उपसलेली तलवार घेऊन पुढे उभा आहे असे त्याच्या नजरेत पडले। यहोशुआने जवळ जाऊन विचारले, तू आमच्या पक्षाचा की आमच्या वैऱ्यांच्या पक्षाचा? तो म्हणाला, नाही, मी येथे परमेश्वराचा सेनापती या नात्याने आलो आहे। तेव्हा यहोशुआने त्याला दंडवत घालून म्हटले, स्वामीची आपल्या दासाला काय आज्ञा आहे? परमेश्वराचा सेनापती यहोशुआला म्हणाला, आपल्या पायातले जोडे काढ, कारण ज्या जागी तू उभा आहे ती पवित्र आहे। तेव्हा यहोशुआने तसे केले। आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Can we have it in Hindi? जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंख उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों के ओर का है? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now the background of this situation is the Israelites have just crossed the Jordan River. और इसकी पृष्ठभूमि यह है कि इजरायली लोगों ने हाल ही में यरदन जो नदी थी उसको क्रॉस किया था in a very miraculous way. और बहुत अद्भुत तरीके से उन्होंने उसको क्रॉस किया था। And the past leader Moses have left them. और उनका जो नेतृत्व करने वाला मूसा था वो चल बसा है। Now Joshua takes ahead. और यहोशुआ जो है
वो सभी को थमे हुआ है। And immediately after they cross this Jordan River, और जैसे उस जॉर्डन रिवर को क्रॉस करते हैं, they have a task of going ahead through through Jericho. और जेरिको जो था उसके अंदर से उसको पार जाना है करके। Now the Israelites and Joshua have a task to go ahead through Jericho. और जेरिको से पार जाना ये यहोशू और इस्राएल लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। And Joshua being a new leader, energetic, talented, young guy, और यहोशू जो है वो नया है, युवावस्था में है और नया नेता है। And बहुत गुणों से भरपूर ऐसा है। and now he's going to have a first task of his career sort of thing. और इसको जो है इस जीवन में जो है उसके नेतृत्व करने के पहली वो चुनौती आई है। And to conquer this Jericho, he prepares everything. और उसको जो है पराभूत करने के लिए, वहां से जाने के लिए वो सारा कुछ जोर लगा रहा है। He plans everything. वो सारी योजनाएं पूरी करता है। He gets the Israelites together. और इजरायलियों को सारों को एकत्रित करता है। And in this situation, now he is going through towards the Jericho. और वो जो है उस ओर जा रहा है। Going towards the Jericho, he's so involved with that plan and his preparations and everything. और वो जो है बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी योजनाओं को लेकर वहां जा रहा है। He's going ahead. और जैसे वो आगे जा रहा है, he encounters the angel. और वहां पर जो है उस देवदूत से उसका सामना होता है। He encounters angel, और वो जैसे ही सामना होता है, but he doesn't recognize him. वो उसे पहचानता नहीं। Why? क्यों? Because he's totally engrossed in his own plans, his own strategies, his own techniques how to go ahead, and whatever he's planned, he's going with that complete burden with him. क्योंकि वो अपनी सारी योजनाएं जो कुछ उसने उसके बारे में सोचा है आगे जाने के बारे में, उसमें व्यस्त है, इसलिए वो उसको समझ नहीं पाया। Like in a corporate life, we say workaholic. He's completely engrossed in that particular situation. और कॉर्पोरेट जीवन में जो है उसे जो है काम में बहुत व्यस्त होने वाला कहा जाता है। He's prepared and he's going ahead towards it. और वो जो है आगे जा रहा है अपनी तैयारी के साथ। And in the midst, he encounters this angel. और वो जो है बीच में जो है इस देवदूत को जो है स्वर्गदूत को मिलता है। And what he asks him? और वो क्या कहता है? Are you from their side or are you from my side? वो पूछता है कि क्या आप उनकी ओर से हो या मेरी ओर से हो? Are you from the people of Jericho? Are you are Israelite? आप उनकी जेरिको की ओर से हो या हमारी ओर से हो? Children of God, परमेश्वर के बच्चों, many a times when we are so involved in a situation, कई बार हम ऐसी परिस्थितियां बहुत व्यस्त रहते हैं, we cannot understand the word of God. हम परमेश्वर का शब्द समझ ही नहीं सकते। We cannot understand the servant of God. परमेश्वर के दास को आप पहचान नहीं सकते। We cannot recognize God himself is speaking with us. हम ये भी नहीं पहचान सकते कि परमेश्वर स्वयं हमसे बातें कर रहा है। Because my plans, क्योंकि मेरी योजनाएं जो है, my brains, my knowledge, मेरा मगज जो है, मेरी जो ज्ञान है, whatever I have done prayerfully, जो मैंने प्रार्थनापूर्ण किया है, seems to be right. वो हमें सही लगता है। But over here, यहाँ पर जो है Joshua asks him a question. यहोशू जो है वो यहाँ पर उसे प्रश्न पूछता है। Are you from whose side? वो उसे पूछता है कि क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? Many times we ask God the same question. कई बार परमेश्वर को हम यही सवाल पूछते हैं। Are you from my wife's side or my side? आप मेरे पत्नी की ओर से हो या मेरी ओर से? Are you from my mother's side or from my side? मेरे माता के साइड से हो मेरे तरफ से? Are you from my mother's side or father's side? मेरे माता के तरफ से हो या पिता की ओर से? Are you from my side or pastor's side? आप मेरी ओर से हो या पासवान की ओर से? Are you from A group or from B group? आप ए ग्रुप से हो या बी ग्रुप से? And we expect God to answer our और questions. हम परमेश्वर को उसका जवाब देने की अपेक्षा करते हैं। And we expect God to answer our prayers only. और हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमारे ही प्रार्थनाओं का जवाब दे। Why? Because in that prayer we have given the solution to God. क्योंकि हमने परमेश्वर को उसका जो है We have समाधान दिया हुआ है। we have given God the way how should this problem be resolved, हमने परमेश्वर को मार्ग बताया कि ये समस्या किस तरह आप किस मार्ग से आप सुलझाए। and we expect God also to do the same, और हम परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर वैसे ही करे, to follow our ways, हमारे मार्गों से चले, our timelines, हमारे समय के अनुसार चले। and if this thing doesn't happen, अगर ये चीज नहीं होती है, we get upset.
हम नाराज हो जाते हैं। Why? क्यों? God is not answering my prayers. क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा। God is answering not my prayers. परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है। God has is mom. Why God is mom with my prayers? परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं के लिए शांत क्यों है? I am fasting. मैं उपवास में हूँ, I am generously praying. मैं बहुत उत्कटता से प्रार्थना कर रहा हूँ, But then why not the answers? कि मेरे प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं मिल रहा? Why? Because the answers cannot be the way you want it. आपकी जैसी इच्छा है वैसे जवाब नहीं हो सकता। Answers will not be as per your timelines. आपके समय के अनुसार जवाब नहीं होंगे। God's answers are His own ways. परमेश्वर के जवाब उसके मार्ग के अनुसार होंगे। Now Joshua asked that angel a question. योशुआ जो है उस स्वर्गदूत को एक सवाल पूछता है, You are from their side or my side? आप उनकी ओर से हो या मेरी ओर से? To which क्योंकि verse 14, what does the angel answer him? 14 वचन में उस स्वर्गदूत ने जवाब ये दिया कि उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत Yeah, किया। my Bible says neither of. और उनका पवित्र शास्त्र जो रेफर कर रहे हैं इंग्लिश वाला, वो कहता है कि मैं किसी के भी ओर से नहीं हूँ आपके। I am not from the enemy side. मैं ना शत्रु की ओर से हूँ, I am not from your side ना आपकी also. ओर से हूँ। Why? Because you have your plans. क्योंकि आपकी अपनी योजनाएं हैं, You have decided something. आपने पहले कुछ सोच रखा है, Your plans are set, आपकी योजनाएं स्थित हैं, but I'm not with it. लेकिन मैं उनके साथ नहीं हूँ। But I am from the heavenly God who has sent me. क्योंकि वहाँ वो कहता है कि मैं जो परमेश्वर ने मुझे भेजा है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसकी ओर से हूँ। I am not with your plans. मैं आपकी योजना के अनुसार नहीं हूँ, I am not with their plans. मैं उनकी योजना के अनुसार नहीं हूँ, But I have a plan for you. लेकिन मेरी आपके लिए कुछ योजना है। Children of God, परमेश्वर के बच्चों, here we feel. यहाँ पर जो हमें लगता है, Here we feel. यहाँ पर हम अपयश आता है हमें, And here because of our prayers are not being answered. इसलिए हमारे यहाँ पर जो हमारी प्रार्थना इस कारण नहीं सुनी जाती है, Because God has a different plan for you. क्योंकि परमेश्वर की आपके लिए कुछ अलग योजना है। God has a different plan for each one of us in every situation. आप में से हर एक के लिए परमेश्वर की उसके परिस्थिति के अनुसार अलग योजनाएं हैं, But we are so stubborn. लेकिन हम इतने कठोर हैं, We are so stubborn with our plans. हम अपनी योजनाओं के प्रति हम इतने कठोर हैं, We are so stuck with that plans. हम इतने उससे जुड़े हुए हैं उस योजनाओं से। We want God to work in that plan, that way and in that timeline. हमें जो है परमेश्वर हमारे समय के अनुसार और उसी के मार्ग के अनुसार करना हम अपेक्षा करते हैं। But God says, परमेश्वर कहता है, I am not in your plan. मैं आपकी योजनाओं में नहीं हूँ, I am not in your plan. आपकी योजनाओं में मैं नहीं हूँ, I don't know what is your plans, मुझे नहीं पता आपकी क्या योजनाएं हैं, but I have plan for you. लेकिन मेरा अपने आपके लिए तुम्हारे लिए एक योजना है, I have a plan for you. मेरा आपके लिए एक योजना है। Now, the angel of God says, I am neither of it. I am neither of the parties. यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं आप दोनों के भी पक्ष में नहीं हूँ, To which, जिसके द्वारा, what is the reaction of Joshua? तो यहोशू का क्या जवाब आता है उसके प्रति? How did he reacted? वहां पर उसने क्या कहा? Can someone read? How did he reacted? Verse 14 only. 14 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें यहोशू ने किस तरह जवाब दिया वो हम देखते हैं। उसने उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? No. Before that itself, at this Joshua fell down on his face on the ground. पर जो है पहला उसका भाग जो देखा तो वहां पर यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। How did Joshua reacted? यहोशू ने कैसे प्रतिक्रिया दी? He didn't fought back. उसने दोबारा कुछ युद्ध नहीं किया, दूसरा कुछ नहीं किया। He didn't reacted God, the angel of saying, how can it be? How can you neither be this? You can be. He didn't fight back. He didn't reacted in that way. उसने वहां पर कोई भी उससे युद्ध नहीं किया, कुछ नहीं कहा। उसने ये नहीं, कुछ सवाल नहीं पूछा कि आप मुझे ये कौन हो, कैसे पूछ सकते हैं। How did he reacted? उसने क्या जवाब दिया? He fell down on his face. वो पृथ्वी पर मुंह के बल गिर गया। He submitted. उसने अपने आप को साझा कर दिया। First point. पहली बात, If you want to hear the God's plan, अगर आपको परमेश्वर की योजना सुननी है, you have to submit him. अपने आप को परमेश्वर के प्रति आपने You have to submit him.
अपने आप को परमेश्वर के ऊपर से सबमिट करना है। And if you have observed from the start of the today's session, आज की इस सभा में अगर शुरुआत से अगर हम देखते हैं, the choir team were also challenging you people. और यहाँ की क्वायर टीम थे वो भी आपको वही चुनौती दे रहे थे। Pastor was also saying the same पास्टर thing. वही बात बोल रहे थे, Submit yourself. अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करो, Submit yourself today. अपने को समर्पित करो, Submit yourself today. अपने को समर्पित करो। The Holy Spirit was speaking. पवित्र आत्मा बोल रहा Submit yourself है, अपने आप को समर्पित for God to speak in your situation. कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति में बातें करें, For God to speak in your ears. इसलिए कि परमेश्वर आपके कानों में बातें करें, God to speak to your heart. परमेश्वर आपके हृदय से बात करें। Okay. Now we see Joshua fell down. Joshua submitted to him. यहाँ पर हम देखते हैं कि योशुआ जो है मुंह के बल गिर गया, अपने आप को उसने समर्पित कर दिया, And then और उसके पश्चात God started speaking to him. परमेश्वर ने बातें करना शुरू कर दी। Children of God, परमेश्वर के बच्चों, if you have to hear God's voice, अगर परमेश्वर की वाणी आज अगर आप सुनना चाहते हैं, you have to submit him. अपने आप को उसके प्रति समर्पित करें, You have to surrender him. अपने आप उसके शरण में आना पड़ेगा। In other way, you have to depend upon him. दूसरे शब्दों में हमें उस पर निर्भर रहना है, You have to depend upon him. आपको उसके ऊपर निर्भर रहना ही है। Until and unless he speaks a word in your situation, you should not go ahead. जब तक वो आपके बारे में कुछ शब्द नहीं कहता, आप आगे नहीं जाओगे। You might be having your own knowledge and wisdom. हो सकता है आपका ज्ञान और समझ हो आपके पास, You might be having the greatest knowledge in your because of your experience. आपके अनुभव के अनुसार आपके पास बहुत महान ऐसा ज्ञान होगा, But God has a plan for every situation. लेकिन परमेश्वर की आपके हर एक परिस्थिति के लिए एक अलग योजना है। Your situation might be same for the same people. Your friend might be having the same situation, and God have rescued it in a manner. That doesn't mean that it applies to you also. हो सकता है जैसी परिस्थिति आपके किसी मित्र की भी वही हो गया, परमेश्वर ने उन्हें उस परिस्थिति से हो सकता है बचाया होगा, लेकिन वो आपके समान होना जरूरी नहीं है। But because God has a plan for each one of क्योंकि us. परमेश्वर के हर एक के लिए एक प्लान योजना है। Many a times कई बार we pray, हम प्रार्थना करते हैं, God, get me to this Dr. ABC. कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे ये डॉक्टर जो है, ये नाम के जो है उनके पास मेरे लेकर चल, So that I can be healed. कि मैं चंगा हो जाऊं। Get me to this lawyer XYZ. मुझे इस वकील के पास लेकर जाओ जिनका एक नाम है, So that my problems will be solved. कि मेरी समस्या छूट जाएगी। Let my son and daughter get married so that my problems have been solved. मेरे बच्चों का विवाह हो ताकि मेरी समस्या छूट जाए। Lord, let me get this job in my XYZ company, and then my financial problems will be solved. परमेश्वर मुझे एक कंपनी में नौकरी में ताकि मेरी आर्थिक समस्या मिट जाए। God replies you, परमेश्वर आपसे जवाब देता है, I am not going to do in any of this thing. कि मैं इसमें से कुछ भी नहीं करने वाला, I am not going to do any of this thing. इसमें से मैं कुछ भी नहीं करने वाला। Because if you want health, अगर आपको आरोग्य चाहिए, come to me. मेरे पास आ जाओ। If you want to get a legal advice, अगर आपको कानूनी Come to सलाह me. चाहिए, मेरे पास आ जाओ। come to me. मेरे पास आ जाओ। If you want a job, अगर आपको नौकरी चाहिए, come to me. मेरे पास आ जाओ। I have a solution for मेरे everything. पास आपके लिए हर समस्या का समाधान है। Don't ask for a doctor. डॉक्टर के लिए मत पूछो, Don't ask for a lawyer. एक वकील के लिए मत पूछो, Don't ask for a XYZ job. और नौकरी के लिए मत पूछो। Come empty-handed to me. खाली हाथ मेरे पास आ जाओ। Just like pastor says, जैसे पास्टर देखते हैं, go to the cross. क्रूस की ओर जाओ। Go to the cross at the hill of skull. जैसे पास्टर कहते हैं कि उस क्रूस की ओर जो गुलगुता जो खोपड़ी का स्थान है वहां पर जाओ। Why? क्योंकि The skull doesn't have any brains. The skull doesn't have any things. खोपड़ी में मगज और कोई भी चीज नहीं रहती, तो खाली रहती है खोपड़ी। We have to go likewise. हमें उसी तरह जाना है। We have to go empty-minded. हमें हमारा मन जो है, दिल जो है खाली रख के जाना है। We have to surrender him, हमें अपने आप को उसके शरण में आना है and we have to depend upon him. और हमें उसके ऊपर निर्भर रहना है। So first point is we have to depend upon him. We have to surrender him. और सबसे पहली बात उस पर हमें निर्भर रहना है, अपने आप को समर्पित करना है, शरण में आना है। Now, अब I was speaking with God. God, how will I be depend upon you? कि
वो भाई परमेश्वर को पूछ रहे थे कि मैं आप पर निर्भर कैसे रहूं। God gave me a very simple example. परमेश्वर ने बहुत सादा ऐसा एक उदाहरण दिया। Arpan, अर्पण जो बेटा है उनका, if he needs anything, अगर उसको कुछ चाहिए, he doesn't earn anything. वो भले कुछ उसका अर्जित ना करते हो, He doesn't have ना करता हो, he doesn't have a wallet. उसके पास उसकी पर्स नहीं है, He doesn't have a credit card, debit card, GPay, anything. उसके पास जीपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कोई भी कार्ड नहीं है। So if he has to buy anything, अगर उसको कुछ खरीदना है, he has to depend upon me वो पिता के ऊपर निर्भर रहेगा or Annie. और माता के ऊपर निर्भर रहेगा। He has to depend upon us. हम पर ही उसे निर्भर रहना है। Okay. Now if we go and buys him something, we take him to buy at a shop. अगर उसको कुछ दुकान से लेना है, उसके लिए वो जाता है। He has his mind while going, he will take a thing after going over there. उसके मन में कुछ बातें हैं कि कुछ बातें वो खरीदना चाहता है। So he will go over there and he'll see a thing वो वहां पर जाएगा और देखेगा कि एक चीज जो उसको चाहिए वो खरीदनी है and he will buy a thing, और वो खरीद भी लेगा। but along with that he will find B and C also thing which he also needs. और वहां पे वो दूसरी तीसरी चीज भी देखेगा जो उसे जरूरत है। He will not give a second thought. वो दूसरे बार सोचेगा He नहीं, will buy those B and C thing also along with A. वो पहली चीज के साथ दूसरी तीसरी भी चीज खरीद लेगा। Least bothering whether I have the money to buy all these A, B thing. और ये चीजें अपने पास बाकी चीजें खरीदने के लिए है नहीं है, बस सोचते हैं के बगैर वो ये चीजें खरीद लेगा। He will buy A, B and C वो तीनों चीजें खरीद लेगा without thinking whether his dad has money or no, he's bought his wallet or no, how will he pay the money. और ये बगैर सोचने के किसी माता पिता के पास पैसा है, पैसे की कोई प्रावधान है नहीं है, वो खरीद लेगा। So he's depend upon me, so he's very carefree whether his dad has money or no, he will buy his thing and forget, that's it, he is done with his job. और बगैर सोचे हुए कि उसके पिताजी वो कर पाएंगे नहीं, उसने उसका काम कर दिया है। And he buys, he takes, he had an intention of buying A things, but he lands up in taking A, B and C things. उसके मन में एक चीज थी लेकिन वो दूसरी तीसरी चीज भी वो खरीद चुका है। Now on the other hand, अब दूसरी ओर I go to buy something. अगर मैं कुछ पास या भाई को अगर खरीदने के लिए एक चीज जाते हैं, Take for instance a shirt. मिसाल के तौर पे शर्ट, On an average 600, 700 shirt, rupees shirt. एक साधारण शर्ट जो है वो 600-700 की ओर आता है। Now I am earning. अगर भाई कुछ पैसा कमा रहे हैं, I have a debit card. उनके पास डेबिट कार्ड है, I have a GPay. उनके पास जीपे है, I have a bank balance. उनके पास बैंक में बैलेंस है, I am independent. वो अकेले हैं, I am not dependent upon वो anyone. किस पर निर्भर नहीं है, And I go buy a shirt. और वो शर्ट लेने जाते हैं 600, 700. और 600-700 का शर्ट लेते हैं, Immediately I think, तो तुरंत वो सोचते हैं does it fit my budget? कि ये क्या मेरे बजट में बैठता है, Is my monthly budget giving me that leverage to buy that shirt? क्या पूरे महीने का मेरा बजट है वो मुझे इसकी अनुमति देता है, Does my EMI give me that leverage of buying that shirt? क्या मेरा EMI वगैरह सब भर के ये पैसा मेरे पास शर्ट खरीदने के लिए है क्या, I am independent. और मैं जो आत्मनिर्भर हूँ, I can buy it. मैं उसको खरीद सकता हूँ। But all these questions come, they sprout out. और इतना मैं आत्मनिर्भर होने के पश्चात भी मेरे पास ये सारे सवाल आते हैं And I land up on not buying that shirt. और मैं जो है वो शर्ट नहीं खरीदता। God told me, though you are depend upon yourself, but always you think of all these things, EMI, monthly budget, this, that. परमेश्वर ने कहा कि आप पैसा कमाते हो, कमाने वाले हो, फिर भी जो है आप जो है महीने का बजट, EMI, ये सारी चीजें ध्यान में लेते हो। Though you are though you are independent, हालांकि आप आत्मनिर्भर हो, though you trust on your money, आप अपने पैसे पे भरोसा करते हो, but still you can't buy a shirt for yourself. अपने आप को एक आप शर्ट भी नहीं कर सकते। And look at your child. और आपका बच्चा देखो, he doesn't earn anything. वो कुछ भी कमाई उसकी नहीं है, He doesn't have any debit card, credit card, anything like this. और उसके पास किसी भी किस्म का कार्ड नहीं है, He is depend upon you, वो आप पे निर्भर है and he lands up in buying more than what he is expecting. और वो सारी चीजें खरीद देता है जो उसके अपेक्षा से ज्यादा है। Here we feel children of God. यहाँ पर हम जो है हम अपयशी हो जाते हैं। We always try to solve problems on our own. हम अपनी समस्या खुद सुलझाना चाहते We always try to solve problems with our budgeted knowledge. हैं
और हमारा जो है एक पर्टिकुलर बजट सोच करके हमारा ज्ञान जो होता है उसके अनुसार हम उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। And we are just trapped in that particular square. और उसी चौरस में जो है हम अटके हुए रहते हैं We do not think out of the box. और उसके बाहर जाके हम सोचते ही नहीं हैं। But when we depend upon God, जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर होते हैं we just don't solve that problem, हम उसे सुलझाते ही नहीं। but we become a channel of blessing for others ना कि also. हम उसे सुलझाते हैं बट दूसरों के लिए हम आशीष का एक मार्ग बनते हैं। Just like the same example, Arpan landed up getting three things when he was supposed to get only one thing. मिसाल के तौर पर अर्पण जो है एक की जगह 3 चीजें ले चुका है। Why? Because he was dependent upon me. क्योंकि वो पिता के ऊपर निर्भर था। He trusts me. वो उस पर पिता के विश्वास है He is least bothered what my father is going to do. और उसको चिंता नहीं है कि मेरा पिता जो है कैसे करेगा। Why? Because he is dependent upon me. क्योंकि वो पिता के ऊपर निर्भर है And he knows that his father is able to do it. और उसे पता है कि पिता उसके लिए सक्षम है करने के लिए। But we fail in this. और हम ऐसे सोचते हैं Though our Father in heaven, कई बार हम फेल होते हैं इसमें कि हमारा पिता जो स्वर्ग में है who has promised us, जिसने हमें वचन दिया है, yeah, though you walk through the valley of shadow of death, फिर भी आप अंधकारी खाई की अंधकार में आप चलते हो, I will be there with you. मैं आपके संग रहूंगा। But we fail to depend upon him. लेकिन हम उस पर निर्भर रहना आप नहीं कर पाते। We fail to trust him. हम उस पर विश्वास रखने में फेल हो जाते हैं। Why? Because my knowledge, my wisdom, my experience is everything that matters. और यहाँ पर वो बात आती है कि मेरा ज्ञान, मेरी क्या जो क्षमता है, जो भी कुछ है, वो अपना जो है वो इसके बीच में आता है। Now, going forward, आगे देखते हैं। now Joshua, like he submitted God, अब उसने जो है अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर he दिया है। falls on his face, वो अपने मुंह के बल गिरा है। and now, अब जो है what is he asking the angel? वहां पर जो स्वर्गदूत को वो पूछ रहा है, Can someone? वहां पर स्वर्गदूत को पूछ रहा है कि अपने दास के लिए प्रभु की क्या आज्ञा है। What he asks? उसने क्या पूछा? What is your solution? What is your way I need to go? उसने उसे दूसरे शब्दों में ये पूछा कि आपके क्या आज्ञा है, मतलब आपके इसके लिए क्या आपने सॉल्यूशन निकाला है, इसके लिए आपने क्या मार्ग निकाला है। Okay. Now Joshua has humbled himself. अब यहाँ पर यहोशुआ ने अपने आप को विनम्र किया है। Joshua submits him to the servant of God. और परमेश्वर के दास को उसने अपने आप को समर्पित किया है। And what he asked, now what's the plan? और वो उसे पूछ रहा है कि अब आपकी योजना क्या है। Have you asked this question, Lord? What is the plan? What is the solution for this? क्या आपने कभी परमेश्वर को पूछा है कि इसके लिए आपकी योजना क्या है, इसके लिए आप क्या समाधान देना चाहते हैं? Yes, you might be saying, yes, I have asked many a time, God, what should I do in this situation? What should I do in this situation? Where should I go? Whom should I meet? हो सकता है आपने परमेश्वर को पूछा होगा कि इस परिस्थिति में मैं किस तरफ, किस ओर कैसे जाऊं करके। But do you lend your ears to His voice? लेकिन क्या उसके जवाब में आपने अपने कान उसकी ओर लगाए हैं? Have we that patience to hear? क्या आपने वो उसकी वाणी सुनने के लिए आपके पास उतनी पेशेंस है, आपके पास उतनी शक्ति है? Do you have the time to hear God's क्या word? आपको परमेश्वर का जो शब्द सुनने के लिए समय है? Second point, दूसरी बात, hear the voice of God. परमेश्वर की वाणी सुनो। Only hear the voice of God. परमेश्वर की, सिर्फ परमेश्वर की वाणी सुनो। And this is not that easy. और ये इतना आसान नहीं है। And we believers, और हम विश्वासी लोग we fail over here only. यहीं पर हम अपयशी हो जाते हैं। We fast, हम उपवास करते हैं, we pray, हम प्रार्थना करते हैं, we read the word of God, हम परमेश्वर का शब्द पढ़ते हैं, but we fail to hear His voice. हम उसकी वाणी सुनने के लिए अपयशी होते हैं। Now you may say, okay, God speaks through the word through His word, हो सकता है हम सोचे कि परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा, वचन के द्वारा बोले, through His servants. अपने दासों के द्वारा बोले। But children of God, let me tell you, लेकिन परमेश्वर के बच्चों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, God's want to speak with individuals sitting over here, individually. हम में से बैठे हुए हर एक को व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। He wants to speak with every person sitting over here. वो आप में से जो बैठा है हर एक से अलग से बात करना चाहते हैं। In your own language, आपकी अपनी भाषा में, in the language that you understand. जो भाषा आप समझते हैं। But the only thing is, लेकिन एक बात है,
Are we ready to sit in His presence? क्या हम उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए तैयार हैं? Because our God is not that easy God. हमारा परमेश्वर इतना आसान ऐसा परमेश्वर नहीं। You pray today आप आज प्रार्थना कीजिए, and you expect the solution tomorrow. Sorry. अगर आप उसका समाधान कल अगर आप अपेक्षा करते हो, God is expecting you to come to His presence. परमेश्वर जो है उसकी उपस्थिति में आपके आने का चाहता है। Prodigal son. और जो वो बेटा था, जो उड़ाऊ पुत्र था, Father didn't go to him. पिता उसके पास नहीं गया। Father didn't go search for him. पिता ने उसको ढूंढा नहीं, But father was waiting for him. पिता उसके लिए रुका था। Father was waiting for him eagerly. पिता जो है उसके लिए आतुरता से वो रुका रहा। But that prodigal son had to take a decision. लेकिन उस उड़ाऊ पुत्र को एक निर्णय लेना पड़ा Should I continue with this mess? कि इस सारी गलती परिस्थिति में मैं लगातार चलूं? Should I end up my life? क्या मेरे जीवन को मैं खात्मा कर दूं? Should I be in this situation only? क्या इसी परिस्थिति में पड़ा रहूं? Or should I go back to my father? या मेरे पिता के पास मैं दोबारा लौट के जाऊं? And that one situation, और वो एक परिस्थिति, and that one situation वो एक परिस्थिति changed his life. उसके जीवन को बदल चुकी थी। Children of God, परमेश्वर के बच्चों, we need to take one decision. हमें एक निर्णय लेना है, Only very simple decision. एक साधा निर्णय लेना है। That shall I go back to my father? क्या दोबारा मैं मेरे पिता के पास Shall I go back to my father? क्या मैं मेरे पिता के पास लौटूं? Now in this prodigal son, you can see there are two sons. और यहाँ पर जो है ये उड़ाऊ पुत्र के जगह वहाँ घर में दो बेटे हैं। Two sons. ये दो बेटे थे। Those two sons represent the two basically broadly two people in our faith in a community, in Christian community. यहाँ पर जो है अगर हम देखते हैं मोटे तौर पे तो यहाँ पर दो अलग-अलग व्यक्तित्व हम देखते हैं। One, एक जो है we call them prodigal son who lost everything and again came back and he was in his father's house. एक व्यक्तित्व जो है वो उड़ाऊ पुत्र का जो सारा अपनी दौलत उसने उड़ा करके वो लौटा। But the second son, दूसरा बेटा जो है, though he was in presence of his father, हालांकि वो अपने पिता के साथ में उसकी उपस्थिति में था, he did all the rituals. वो सारे क्रियाकर्म उसने किए। He used to hear his father promptly. पिता से वो लगातार अच्छी तरह से सुनता रहा, He did all the things. सारी बातें उसने की। But where was he during the time of feast? लेकिन उस पर्व के समय में कहाँ पर था? Where was he? कहाँ पर था? Outside the feast. वो उस पर्व के बाहर था। He didn't come and enjoy the feast. और उसने जो है वो पर्व मनाया नहीं आकर के, उसमें उसने लुत्फ नहीं उठाया। Though he had everything, हालांकि उसके पास सारा कुछ था, the complete property was his. वो पूरी जो प्रॉपर्टी थी उसी की थी, But because of his jealousy, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या थी, उसके कारण, just because of his pride, उसके अंदर जो गर्व था उसके कारण he was left out. वो बाहर रख दिया। And the son who became humble, और वो बेटा जो विनम्र हुआ, the son who became humble, जो विनम्र हुआ, though he had he ruined everything, हालांकि उसने सारा कुछ बर्बाद कर दिया, though he had done the biggest mistake in his life, हो सकता है उसने जीवन की बहुत बड़ी गलती की, but just because he humbled himself, लेकिन उसने अपने आप को विनम्र किया, just because he came back, क्योंकि वो दोबारा लौट आया, he was in the feast, वो उस पर्व में था, he was wearing the richest clothes that was given by his father, और सबसे अमीर उत्तम ऐसे वस्त्र जो उसके पिता ने उसे दिए वो पहन रखा था, and he was enjoying the feast. और वो जो है उस पर्व में लुत्फ उठा रहा था। And the son और दूसरा बेटा who always was in prayers, जो हमेशा प्रार्थना में रहता था, morning prayer, evening prayer, Sunday prayer, this meeting, that meeting, everything, he was there. और दूसरा बेटा जो हमेशा प्रार्थना में सारी सभाओं में रहता था, On the feast day, उस पर्व के दिन he was outside वो बाहर था, because of his pride, क्योंकि वो गर्विष्ठ था, because of his hardened heart. क्योंकि उसका हृदय जो था कठोर हो चुका था। Children of God, परमेश्वर के बच्चों, if you want to have your answers to your prayers, अगर आप चाहते हो कि अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिले, you need to ask God. आपने आज परमेश्वर को पूछना है, You need to humble yourself, अपने आप को विनम्र करना है, and then God will start speaking to you. उसके पश्चात परमेश्वर आपसे बातें करना शुरू करेगा। And when God starts speaking to you, जब परमेश्वर आपसे बातें करना शुरू करेगा, you need to have your ears to Him. आपको अपने कान उसके वाणी को देने पड़ेंगे। And for that time, apart from your Bible reading, apart from your prayer time, you have to have a quiet time. आपके पवित्र शास्त्र पढ़ना,
उसके प्रार्थना करना उसके बजाय अलग से आपको उसके लिए एक शांत समय देना होगा। And where we all Christian feel, और हम सारे ईसाइयों को यह लगता है, we fail in this quiet time, giving quiet time to Him. और हम जो है अक्सर ये परमेश्वर को शांत अच्छा समय देने में अपयशी होते हैं, And we fail to hear His voice. और हम जो है उसकी वाणी सुनने में नाकामयाब होते हैं। And then we go meet people, this one, that one, with this experience, with that experience, and they ruin our lives. और हम जो है इसके पास उसके बाद जाते हैं, उसका अनुभव सुनते हैं और अपने जीवन को जो है बर्बाद कर देते हैं। Now going forward, आगे चलते हैं। now Joshua hears his voice, God's voice, यहोशू जो है परमेश्वर की वाणी यहाँ पर सुन रहा है। and what is God's plan? परमेश्वर की योजना क्या है? Chapter 6 verses 2 and 5, अगर छठा अध्याय 2 वचन और 5 वचन 2 to 5. तो 2 से 5 वचन हम अगर पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीर समेत तेरे वश में कर देता हूँ, सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। 6 दिन ऐसा व्यवहार किया करना, और सात याजक संदूक के आगे जुबली के साथ नरसिंगे के लिए चले, और 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूकते चले जाओ, और जब वे जुबली के नरसिंगे के देर तक फूकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें, तब नगर की शहपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। What is the solution to an army officer? और एक जो यहाँ पर एक योद्धा, एक अधिकारी, युद्ध का अधिकारी था, उसके लिए क्या सुझाव दिया गया? A very young, dynamic army officer. और यहाँ पर एक योद्धा है, एक योद्धा अधिकारी है जो बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत ही सदैव जैसा है, who has planned everything. उसने सारी योजनाएं कर दी है, His plan is the best plans. उसकी योजना सबसे अच्छी है। And what God tells him? और परमेश्वर उसे क्या कहता है? Scrap your plan. आपकी सारी योजनाओं को खारिज कर दो। Scrap your plan. आपकी योजनाओं को खारिज कर दो। And what you do? आप क्या करो? Just go around this Jericho wall every day one time. और ये यरीहो की दीवार है, उसकी ओर आप रोज एक बार घूमते रहो। And the last day, आखिरी दिन पर 7 times. 7 बार घूमो। What is the solution, God? ऐसा परमेश्वर ऐसा कैसे से आप सुझाव दे रहे हो? I have been asking you for a doctor for my health. आपको मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे आरोग्यता के लिए मुझे डॉक्टर चाहिए। I have been asking you for a legal advisor for my legal thing. कानूनी सलाहकार के लिए पूछ रहा हूँ। I have been asking you for a job for my financial situation. मेरी आर्थिक परिस्थिति के लिए आपको एक नौकरी पूछ रहा हूँ। And what are you saying? और आप क्या कह रहे हो? What are you saying? आप ये क्या कह रहे हो? Many a times, though we hear the voice of God, कई बार हम परमेश्वर की वाणी हालांकि सुनते हैं, though we hear the voice of God from servant, हालांकि उसकी वाणी परमेश्वर के दास के द्वारा सुनते though हैं, the word speaks to us, शब्द हमारे पास वाणी हमसे बात करता है, but we are not ready to accept it. लेकिन हम उसे स्वीकारने की परिस्थिति में नहीं रहते। Third point, तीसरी बात, though we hear everything, हम हालांकि सब कुछ है, but we fail to implement it. हम उसे लागू करने के लिए चूक जाते हैं। Why? Because it's beyond our imagination. क्योंकि हमारे सोच से परे है वो, It's beyond our limited brains. हमारे मर्यादित मगज के परे है वो, It's beyond our knowledge and wisdom. हमारे ज्ञान बुद्धि से समझ से आगे का है, It's beyond our experiences. और हमारे अनुभव से परे आगे ऐसा है वो। And we again scrap that plan and we go ahead with our own plans. और फिर हम एक बार उस योजना को खारिज करके अपनी योजना के अनुसार आगे चलना शुरू करते हैं, And we fail. और फिर हमें अपयश आता है, And then again we start the next prayer. और फिर हम अगली प्रार्थना शुरू करते हैं। Why me, God? मैं क्यों इसमें ऐसा परमेश्वर को पूछता हूँ? I have done all these things prayerfully and in your guidance, मैंने सारी ये बातें आपके उपस्थिति में, आपके मार्गदर्शन अनुसार प्रार्थना में की है, but why failure in my life? मेरे जीवन में नाकामयाबी क्यों है? Hope everyone has gone through this experience. हम आशा करते हैं कि आप सारे इस अनुभव के द्वारा गए हो। But children of God, परमेश्वर के बच्चों, let me understand. मुझे Let me tell you ये बात बताने दो, that God's plans are totally different.
परमेश्वर की योजना आपके विचार से पूरी तरह अलग है। Can you imagine Joshua's situation, a very dynamic soldier, head of the army? क्या योशुआ की वो परिस्थिति थी कि वो उस परिस्थिति में था, He had planned everything, उसने सारी योजनाएं कर रखी थी and he was about to, charge over that Jericho people. और वो वहाँ के जो लोग थे यरीहो के, उनके ऊपर हमला करने ही वाला था। And the word of God comes and said, "No, this is not the plan." और परमेश्वर आकर कहता है कि परमेश्वर का शब्द कहता है कि ये योजना है ही नहीं, ये योजना कुछ और है। My God, can you imagine this? How Joshua would have felt? आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर यहोशुआ को ये कैसे लगा होगा। He would have gone mad. God, what is this plan? Just going around and the wall being falling down. और उसने आश्चर्य से कहा होगा कि परमेश्वर ये कैसी योजना है कि सिर्फ उस जो वहां की दीवार थी उसको आप चक्कर मारो और गिर जाएगी। Children of God, God's plans are the same plans. परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर की ऐसी ही योजनाएं हैं। He will give you victory और वो आपको जो है विजय देगा without any bloodshed. और बगैर किसी रक्त बहाने के वो आपको विजय देगा। He will give you victory वो आपको विजय देगा without fighting a war. आपको युद्ध लड़ने के बगैर भी वो विजय देगा। He will give you victory वो आपको विजय देगा without going to a doctor. डॉक्टर के पास जाने के बगैर आपको विजय देगा। Your legal issues will be solved without a lawyer. आपकी कानूनी समस्याएं उस कानूनी सलाहकार के बगैर सुलझाई जाएगी। Your financial problem will be solved without a job. आर्थिक समस्या नौकरी के बगैर सुलझाई जाएगी। But are you ready to humble yourself? क्या आप अपने आप को विनम्र करने के लिए तैयार हो? Are you ready to hear his voice? क्या आप उसकी वाणी सुनने के लिए तैयार हो? And और moreover, उससे आगे are you going to work over the voice of God? और क्या परमेश्वर की वाणी के सुनने के पश्चात आप उस पर काम करने के लिए तैयार हो? Though it might sound very weird to you, हो सकता है वो आपके लिए एक विचित्र लगे, though it might sound totally different, हो सकता है आपको एक अलग ही लगे, hope it might sound you being alone, हो सकता है कि वो आपको अकेलापन लगे, everyone against you, हर एक आपके खिलाफ है, everyone against you. हर एक आपके खिलाफ दिखाई दे। Can you be alone with God? क्या आप परमेश्वर के साथ अकेला चलना चाहते हैं? Can you be alone with God? क्या आप परमेश्वर से अकेला चलोगे? And his plans, और जो भी उसके प्लान है, trusting him उस योजना पर विश्वास करके that it will happen, कि वो होने वाला है, though it might be beyond your imagination, आपके समझ से हो सकता है, though it might be going against the plans being told to you. हो सकता है योजना आपको जो बताएगी उसके अलग हो, Can you trust God? फिर भी क्या आप उसको परमेश्वर विश्वास करते हो? You might be in a situation today आज एक आप ऐसी परिस्थिति में which has not been solved for a long time. बहुत समय से उससे सुलझाया नहीं गया, You have solution. You have been given solutions also. आपके उस समस्या का समाधान आपके पास है, आप दे भी चुके हो। Many have given you a solution. हो सकता है